Young Yes. morning, young day. Young. Day. Young. Good morning. Good morning. Good morning. Chit chat all about. Good morning, ma'am. Good morning. Did I miss something? Good morning. Very good Good morning. morning. Nothing much. Very good morning. Charming Nothing morning. much. No. There was a lot of love and laughter. Good morning. happening. Good morning. Very good morning. Thanks to you, ma'am. Thank you. It's a joint endeavor together. So thank you and very good morning. I hope everyone had a very good Janmashtami yesterday. And well, for sorts, Delhi is kind of shut today, tomorrow, day after G20 summit. Yeah. I have actually prayed that India could have a very good trading alliance with the other countries. I wrote that in my gratitude yesterday, that, you know, India has to become global. It is such a superpower. 66% of India is youth. So it should actually have amazing economic alliances and trading alliances with the other countries. We have so much to give, so much to export, wheat and sugar. So, and then of course, like that will really bring India to the highest economy. So I'm really hoping that this G20 summit that's happening today, tomorrow, day after, it has the best fruition, you know, like it should conclude in the best way possible. With very good alliances. I think we should all, you know, we have to be like that as citizens of this country. Okay, now we continue with, you know, our dream list, on a journey of achieving our dream list. So हमने कल किया था magical, you know, heal the relationships, जिसमें broken relationships के लिए किया था. Again, there are certain areas of our life जो हमको हमारी dream तक पहुंचने नहीं देती हैं, because रास्ते में बहुत सारे, you know, कुछ obstacles हैं. So एक obstacle of course होता है health का, because constantly if the health is not good, it is very difficult to think about a larger goal, you know, because that health day in and out is actually very, it bites us sometimes, you know, it can get that serious. So hence today's chapter is about the health. It is called Magics and Miracles in Health. So that is what, इस तरह से हमारी हेल्थ में जो भी एक पर्टिकुलर चीज हमारी हेल्थ में जो हमको बहुत बॉदर करती है, जिसके कारण हमने सफर किया है, जो अभी भी बार बार हमारे दिमाग में आती है. So that is what we will be addressing today, and we will eliminate it forever. Transform कर देंगे वो वाली एनर्जी, हेल्थ वाली, है ना. So वो चैप्टर है आज का, हेल्थ, मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन हेल्थ. और दूसरी चीज, हम ये अपनी स्टडी आई थिंक मैक्सिमम 7:10 तक एंड कर देंगे. 7 o'clock I'll end my study. उसके बाद we'll take 2 quick sharings, okay, because वो टाइम का थोड़ा सा हो जाता है when the sessions end late. Yesterday I could not do my workouts in the morning and I had to do it from 8:15 to 9:40 p.m. cardio and strength training in the night, whereas in night at 9 I'm already in bed, you know, I'm reading something or something like that. So I think we need to kind of manage our time. For all of us, time is very precious, and you know, हम उसका maximum utilization करेंगे in the best possible way, because I love working out in the morning. I'm not a night person. After 7:38 I'm not out of the house at all, no matter if no parties, nothing on the weekdays, you know, that's very clear. So हम थोड़ा time manage कर लेंगे अब से. So yes, starting with magics and miracles in health. This is the image that we see here. इसमें बहुत सारे bottles रखे हुए हैं. तो इनको you can say that these are magical bottles. Black है, white है, और इस पे ऊपर लिखा हुआ है magic elixir. Elixir का मतलब होता है अमृत, you know, the magic potion. So ये सारे magic elixir है. So आज हम ये gratitude का magic elixir, यानी कि अमृत जिसमें बहुत शुक्राना भरा हुआ है, ये हम अपनी जिंदगी के अंदर डालेंगे, ताकि हमारा हेल्थ, हमारी बॉडी रिवाइव हो जाए, और जो भी इशू चल रहा है हमारी हेल्थ का, ठीक है. तो इसमें ये वाला जो चैप्टर है, इसमें हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि डायबिटीज है, कि ब्लड प्रेशर है, कि कोलेस्ट्रॉल है. हेल्थ का मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होती है, ठीक है. तो अगर एंजाइटी पैंग्स आते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तब हमको एक अपनी बीमारी चूज करनी है, जिसकी एनर्जी हमें ट्रांसफॉर्म करनी है, जो हमारे लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगी, है ना.
एक बीमारी चूज करनी है, वॉट एवर इट इज. ट्राई टू फिगर आउट द क्रॉनिक बीमारी जो बहुत टाइम से चल रही है. ऐसे नहीं कि जो कल ही हुई थी तो आज. उसके लिए मैजिकल हेल्थ करते हैं. अगर जो छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, कोल्ड एंड कॉफ, गला खराब होना, एकदम से पैर में दर्द हो रहा है, या मतलब कुछ ऐसी जो बीमारियां होती है, एकदम से फीवर हो गया, तो और वो सारा हमको फर्स्ट 12 चैप्टर्स जो किए थे जिसमें मैजिक हेल्थ है, वो वाला करना है. इसमें हमको क्रॉनिक बीमारी लेनी है. क्रॉनिक बीमारी मतलब पुरानी बीमारी which has been bothering us for a while, and it could be diabetes, it could be like migraine, headaches, it could be लगातार जो knees वगैरह में पेन होता है, it could be that. It could be like depression. It could be too much of your weight अगर आपका नहीं कम हो रहा है और वो आपको बहुत बॉदर कर रहा है, तो it could be and being overweight. It could be high cholesterol, fatty liver. कोई भी ऐसी बीमारी जो कुछ टाइम से हमारे पास है, फिजिकल या मेंटल भी हो सकती है. ठीक है, तो ये ऐसी बीमारी. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं. यस नीति, प्लीज स्टार्ट. Yeah. Good morning. Day 16, Magic and Miracles in Health. Quote, Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Unquote, by Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website, www.thesecret.tv/stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandably that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it is the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about,
And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. Step 1, health you have received in the past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Step 2, health you are continuing to receive in the present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. Step 3, health you want to receive in the future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feeling to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be,
Be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for an excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfect, supple, and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be, then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Quote, natural forces within us are the true healers of disease. Unquote, by Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Number 1 is count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3, think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you. Thank you so much, Neeti, for reading so beautifully. Thank you. So basically this chapter talks about जो भी हमारी वही chronic health problem है. So इसमें Hippocrates, वो father of the Greek medicine उनको बोला जाता है because वो हमेशा अपने फूड से, हिपोक्रेटिस वाज आल्सो अ फिजिशियन, और उनकी जो सारी दवाइयां होती थी वो नेचुरल चीजों से बनती थी, जिंजर, गार्लिक, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, इस तरह से. तो वो कहते हैं कि नेचर इज द बेस्ट हीलर, जो इसमें भी लिखा हुआ है एक जगह पे. सो नेचर इज द बेस्ट हीलर, नेचर इनसाइड एंड नेचर आउटसाइड. इसीलिए पहले आपने देखा होगा कि कभी भी जो रिहैब सेंटर्स होते थे टीबी के लिए, टीबी पहले बहुत बड़ी बीमारी समझी जाती थी, इट यूज्ड टू बी इनक्योरेबल,
अर्लियर टाइम्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। और उस वक्त रिहैब सेंटर्स होते थे टीबी के जो सिटी से दूर, लाइक जब भी आप लोग कभी शिमला जाओ तो उसके थोड़ा पहले वहां का टीबी का रिहैब सेंटर है जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता था। कभी भी जब बीमारी बहुत होती थी तो हमेशा डॉक्टर्स भी बोलते थे कि थोड़ा सा हवा और पानी बदल दो, गो टू द हिल्स, गो टू सम अदर प्लेस। सो यू नो, बिकॉज एक्चुअली जो नेचर होता है वो हमको हील करता है बहुत ज्यादा। सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। सो हमें अपने बॉडी के अंदर की जो क्योरिंग कैपेसिटी है, जो हीलिंग कैपेसिटी है, उसको एक्टिवेट करना होता है ना, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड में रहें, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट करनी जरूरी होती है। जब भी क्रॉनिक बीमारी है इसका मतलब है कि वो बहुत पुराने टाइम से चल रही है। अगर वो ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है वो 10, 15, 20 ईयर्स से हमारी बॉडी में है। इसका मतलब है वो एनर्जी हमको शिफ्ट करनी है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। हीलिंग बॉडी की अपने आप एक्टिवेट होती है, जो मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ दैट हमारी बॉडी जेनेटिकली, फिजिकली एंड न्यूरोलॉजिकली रोज बदल रही होती है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड वी हैव, the kind of lifestyle we live and the kind of thoughts and emotions we have. ये 3 चीजें उन 3 चीजों को बदलती हैं और अफेक्ट करती हैं। और वो बदलना कैन बी नेगेटिव, बदलना कैन बी पॉजिटिव, है ना। तो हम इन तीनों चीजों को अपनी बदलेंगे। द काइंड ऑफ फूड वी हैव, ओके, फूड एंड लाइफस्टाइल हमारी, वी हैव टू चेंज अबाउट आवर थॉट पैटर्न्स जो हमारे हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और बॉडी को वर्कआउट, वॉक कराओ या मूव ज्यादा कराओ, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी मेंटली कुछ टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, एंगर आता है, इनसिक्योरिटीज आती हैं, एंजाइटी आती है, फियर आता है, वरी आता है। इसीलिए इसमें एक लाइन लिखी है दैट अगर वरी, फ्रस्ट्रेशन, फियर है, इसका मतलब है बीमारी हमारी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही मतलब इट कॉजेज इलनेसेस, मतलब हीलिंग एनर्जी की ऑपोजिट होती है ना। तो इसलिए अगर इसमें रॉन्डाबर्न ने लिखा है कि अगर सपोज आपको आपकी बीमारी बहुत परेशान कर रही है, यू आर रियली ट्रबल्ड बाय द डिजीज दैट यू हैव करेंटली एंड यू बीन हैविंग फॉर अ व्हाइल, और आपको बहुत दवाइयां लेनी पड़ती है उसकी वजह से, इमीडिएटली स्टार्ट गिविंग लव एंड अप्रिशिएटिंग योर बॉडी। ओके, इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द आइडियल स्टेट, मतलब जो बिल्कुल करेक्ट स्टेज है कि आपकी रिपोर्ट आई है और उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल इज बिटवीन से 200 मिलीग्राम्स आ गया है, पहले में भी 400 था या 240 था या 300 एंड समथिंग था। तो आइडियल स्टेट आपको देखना है अपने दिमाग में और बार बार आइडियल स्टेट के बारे में बात करनी है, आइडियल स्टेट के बारे में ही सोचना है, ठीक है। जो आपका जो भी आइडियल स्टेट है, सपोज आपका बॉडी वेट है और आप उसकी वजह से बहुत परेशान हो क्योंकि आपका वेट लॉस आप करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आपका जो आइडियल बॉडी वेट है which just could be say 60 kilos, है ना, suppose you are 80 or 85 which could be 60 kgs, तो आप जब आप 60 kgs में अपने आप को विजुलाइज कीजिए दैट कितना अच्छा लग रहा है, आपके फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, दूसरों को जो आपके क्लोज वंस हैं जो जनरली आपको देख के आपको हमेशा एनकरेज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उनकी आवाज में आप सुनो कि वो आपको बोल रहे हैं दैट वाओ आपका इतना सारा क्या किया ऐसा जादू, यू आर लुकिंग सो गुड, ठीक है। सो दैट इज एंड दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फॉर योर वेट लॉस। देन इट कुड बी से ब्लड शुगर रिपोर्ट, HbA1c हो सकता है अभी आपका ज्यादा आता हो, है ना। सो HbA1c अगर आपको लेके आना है और यू वांट टू कीप इट बिलो 5.7%, सो बिलो 5.7% आइडियल होता है, तो आप उसको इमेजिन करो कि आपकी रिपोर्ट 5.4 आई है एंड यू नो यू आर सो हैप्पी अबाउट इट एंड द डॉक्टर इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू कि वाह ये तो बिल्कुल नॉर्मल आ गया आपका, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अब आप ध्यान रखना खाने का। तो इस तरह ये आइडियल स्टेज के बारे में हमको ज्यादा सोचना है, ठीक है। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया मतलब आपको रात में टाइम से नींद नहीं आती है और सुबह टाइम से नहीं खुलती है और रात को नींद ही नहीं आती है जिसके कारण आप बहुत लेट सोते हो, है ना, उसके कारण आप सुबह उठते हो तो पूरा दिन आपका बहुत ज्यादा ग्रॉगी और फीलिंग लो वैसा वाला बीतता है, बिकॉज जब रात को नींद नहीं आती है तो पूरा दिन थोड़ा सा हम लेजी रहते हैं और किसी चीज में मन नहीं लगता।
तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर एड्रेस करनी है तो आप ये विजुलाइज करो दैट वाओ लाइक यू आर स्लीपिंग सो साउंडली लाइक अ बेबी एंड यू आर वेकिंग अप सो फ्रेश एंड सो रिवाइव्ड एंड सो रिजुविनेटेड एंड पूरा दिन आप पूरी एनर्जी में रहते हो। इसके बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना है कि रात में नींद नहीं आती मुझे, रात में नींद नहीं आती मुझे, ये नहीं बोलना है हमको, न सोचना है न बोलना है। सो दैट्स वेरी वेरी क्लियर, है ना। सो आज का चैप्टर इज अबाउट 3-4 थिंग्स जो इसमें की पॉइंट्स है मैं वो टच अपॉन कर देती हूँ। वैसे तो रोंडा बर्न ने बहुत क्लैरिटी के साथ ऑलरेडी इसको समझाया हुआ है that you know like it says health is not contrary to nature. I don't know paraphrase it, हम उसमें से पढ़ते हैं but what we know about nature, तो हमको पता नहीं है, हम अभी भी नादान लोग हैं, हमको पता नहीं है कि नेचर कितना बड़ा हीलर होता है और कितनी ताकत होती है। नेचर हैज अ लॉट ऑफ पावर। ओके, सो ये इसमें है miracles are not contrary to nature but only contrary to what we know about nature. So miracles is equal to nature. That is what it means. Miracles is equal to nature. Miracle and nature inside and nature outside. Nature means हमारे जो 5 elements हैं उन्हीं से हमारी body बनी हुई है और हमारे आसपास हर तरफ there are 5 elements, isn't it? I mean, we see the space, we see the beautiful sunrise happening, we see the air that we breathe in. इतनी आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे टाइम कंज्यूम किए जाते हैं हवा को बिना थैंक यू बोले, इतने साल बिता दिए बिना थैंक यू बोले, है ना, और फ्री में कंज्यूम किए जाते हैं। वी हैव सो मच ऑफ द स्पेस अबव, है ना, कहते हैं अपॉर्चुनिटी स्पेस से आती है, रिकॉग्निशन स्पेस से आती है, सक्सेस एंड ग्रोथ स्पेस से आती है। प्लेन में आप फ्लाई स्पेस से करते हो, स्पेस को हम बहुत, स्पेस में ही सब कंटेन्ड है ना, स्पेस है इसीलिए अच्छा लगता है। सोचो अगर सीलिंग मेरे जस्ट सिर के ऊपर होती कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता हमको। सो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ जिनकी वजह से इतने लग्जरीज एंड कंफर्ट्स हैं हमारी जिंदगी में, ब्यूटी है, अबंडेंस है, ठीक है, खाना पीना हम अर्थ से खाते हैं, अभी तक थैंक यू नहीं बोला था, आप ध्यान रख के बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो 5 एलिमेंट्स अंदर हैं, 5 एलिमेंट्स बाहर हैं, उनके साथ कनेक्ट होके रहना बहुत जरूरी है और प्लस नेचर के साथ अलाइनमेंट में चलना। नो लेट नाइट्स, ओके, नो लेट नाइट, बिकॉज बॉडी की सर्केडियन रिदम को फॉलो करना जरूरी है। गुड बॉडीली केयर लिखा हुआ है रोंडा बर्न ने 2 जगह इस चैप्टर में, ठीक है। सो गो अकॉर्डिंग टू द नेचर। हमारी बॉडी, मैंने आपको पहले बताया था ये वाली चीज की, हमारी बॉडी में जो हमारा ग्लैंड होता है, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ऊपर होता है यहाँ पे, जो हमारा प्रोट्रूडिंग पार्ट है फोरहेड के पीछे, वहां पे दैट वर्क्स, उसमें मास्टर क्लॉक होती है। जैसे हर सिटी में क्लॉक टावर होता है ना, तो वो क्लॉक टावर हमारी बॉडी की हाइपोथैलेमस में इंस्टॉल्ड है और वो जैसे बाहर टिक 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 घड़ी चलती होती है ना, द क्लॉक दैट वर्क्स इन अ हाउस, द इंटरनल क्लॉक इज ऑल्सो गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। इट वर्क्स ऑन द सनराइज एंड सनसेट साइकिल एंड लाइट, अफेक्टेड बाय लाइट। ओके, सो जैसे ही शाम को जब अंधेरा होने लग जाता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मोर देन 50% गिर जाता है, क्योंकि इट इज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का टाइम शुरू हो जाता है शाम को, ठीक है। तो उस वक्त डाइजेस्टिव फायर नहीं जनरेट करना है, इसीलिए कहते हैं ईट डिनर लाइक अ बेगर। हमने सुना होगा ना, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ क्वीन एंड डिनर लाइक अ पॉपर। पॉपर का मतलब बेगर होता है। तो डिनर हम बेगर की तरह इसीलिए खाने को बोला जाता है बिकॉज एक्चुअली 6-7 बजे के बाद आपका मेटाबॉलिज्म इतना लो होता है और बॉडी उस वक्त अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन रिदम, दैट मीन्स इंटरनल क्लॉक जो हमारी बॉडी में लगी हुई है, उसके हिसाब से आप कोई भी स्टिमुलेटिव और ओवर एक्टिविटी करोगे अगर सनसेट होने के बाद, तो आपकी बॉडी डिजीज के रूप में वापस आएगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी ये है दैट हम नेचर के साथ अपना हेड बैंग नहीं करें और नेचर के अलाइनमेंट में हम सारी चीजें करें। सो आप अच्छे से पूरे दिन मस्ती करो, सब करो, बट जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का टाइम है, सोने का टाइम है, बॉडी रेस्टफुल कंडीशन में चली जाती है, डाइजेशन का बहुत स्कोप नहीं रह जाता है डिनर के बाद। इसीलिए अगर आप हैवी मील खाओगे तो आपका मोटापा बढ़ता रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे जैन्स में ये होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलीजन दैट सेज दैट ईट बिफोर द सनसेट। तो हमारी सरिता जी सनसेट के पहले खाना खाती हैं 6 बजे, ये मुझे पता लगा उनसे बात करके, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर कहता है, बट वैसे भी उनकी हेल्थ भी यही बोलती है।
and जिसके कारण you see that she looks different at her age, you know, like being a grandmom and everything. So सब कुछ body is so fit and so healthy. So this is how it is. अगर हम भी ये करना शुरू कर दें तो bodily care करनी जरूरी है ना? अगर हम बिना right action के सिर्फ gratitude में रहेंगे और lifestyle गलत होगी तो हमारी health का तो बैंड बजाएगा. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अलाइनमेंट में रहें, क्योंकि ये नेचर के साथ अलाइनमेंट में, नेचर के साथ टैंडम में रहना बहुत जरूरी होता है. अननेसेसरीली डोंट, यू नो, थोड़ा से अपने रूल्स को बेंड करना चाहिए टू बी इन द करेक्ट लाइफस्टाइल. ये हम सबको बोलते हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. ओके, सो दिस इज व्हाट. सो पीपल, जो लोग रात में, वो अपनी वेडिंग भी दोपहर को ही करते हैं, है ना? आशमिन जी की डॉटर की वेडिंग हो रही, दोपहर को ही हो रही है ना सारे फंक्शन. वो सुबह, अभी भी सुबह के सेशन रोज ले रही हैं. आज तो बेटी की शादी है, परसों संगीत था, सब हो रहा है, इतनी सेरेमनीज हो रही हैं, सारे फंक्शन दोपहर को हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो आदत है, लाइफस्टाइल है कि अर्ली टू बेड करना है और अर्ली टू राइज करना है. ये इंटेग्रिटी होनी बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आप देखना आपकी हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे. आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, आपका वजन घट जाएगा, आपका मेंटल पीस होने लग जाएगा. अगर दिमाग में बहुत क्लटर रहता है, ठीक है, आप बहुत जल्दी हीलिंग बहुत जल्दी होगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी. आपका हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है, हाइपोथायराइड है, कुछ पीसीओएस है, या स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होते हैं, वो सब नहीं होंगे, वो ठीक होने लग जाते हैं. इंसुलिन हार्मोन जो प्रॉब्लम करता है, कुछ ओबेसिटी, पीसीओएस, डायबिटीज, वो सारी चीजें, यू नो, इट विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस. दैट इज द मैजिक ऑफ स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग अप अर्ली. Just to let you know, it's not a science class, but I want to let you know कि आपके जो जितने हॉर्मोन्स बनते हैं ना बॉडी में, और इम्यूनिटी, मतलब सारी एनाबॉलिक एक्टिविटीज, दैट मीन्स एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द एंटीबॉडीज, आपके एंजाइम्स, आपके इम्यून सेल्स, ये सारे आपके रात को 10 से लेके 1 बजे के बीच में होते हैं, गहरी नींद में. You have to be in deep sleep to be able to synthesize those hormones and enzymes and antibodies, immune cells, even muscles. आप सुबह वर्कआउट करते हो ना, सपोज सुबह आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, अगर मसल्स आपके रात को ही बनेंगे 10 से 1 के बीच में, जब आप गहरी नींद में होते हो. ठीक है, तो गहरी नींद में होते ही नहीं है लोग 10 से 1 बजे तक. तभी तो इंडिया में इतनी बीमारियां हो रही है, जबकि हमारा खाना कितना बढ़िया है. मतलब हमारे जैसा खाना किसी कंट्री में नहीं है. इतने तरह की दालें, इतनी तरह की सब्जियां, इतनी तरह की पत्ते वाली सब्जियां, the green leafy vegetables. Nowhere in any of the countries we get such an amazing food. Okay, in spite of that, you know, like 70% of India is sick, you know, and they need a treatment or they are deficient. That's only because हमारा जो ये late night culture है, हमारा over drinking of alcohol and all these things है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी स्ट्रेस को ऐड कर रही हैं. तो इसीलिए नेचर के टैंडम में रहो, सनराइज के साथ बॉडी को जागो, जो हम सब करते ही हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हो. इवन एट दिस मोमेंट यू ऑल गॉटन अप अर्ली, है ना, एंड रेस्ट विद द सनसेट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ईटिंग एंड ऑल दैट. सो that, and move your body as much as possible. Nature, according to nature, joints and muscles are there which are literally like rubber band. They can make you flexible. People can do chakrasana and become one round circle. You know, इतनी flexible spine होती है हमारी. ऐसे कहते हैं हम लोग हमारे health sector में that you are as old as your spine. Okay, so if you have a healthy spine, if you can flex your spine more, मतलब try to touch your toes or something, तो आपकी spine वैसे भी उसमें होगी ना, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबली बेंड होगी. सो यू विल सी दैट आपकी एंटी एजिंग शुरू हो जाती है उसकी वजह से, बिकॉज यू लिटरली आर एज ओल्ड एज योर स्पाइन. इफ योर स्पाइन हैज स्टार्टेड डीजेनरेटिंग, दैट मीन्स आपकी सेलुलर एजिंग शुरू हो गई है. ठीक है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होना, बॉडी में एजिलिटी होना, रोज थोड़ा वर्कआउट करना, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, कभी योगा कीजिए, ये कीजिए, क्योंकि हेल्थ वाला चैप्टर है तो बहुत जरूरी है कि हम वो सब भी करें. अगर मेंटल पीस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, मतलब ये सारी मेंटल वाली डिजीजेस होती है, अगर इनकी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स की कमी है ना, और स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है. तभी ऐसा होता है कि जब मेंटली आप बहुत ओवरथिंकर हो जाते हो या गलत सोचने लग जाते हो. अब वो सारी अगर इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में वर्कआउट्स बिल्कुल भी नहीं है. अगर वर्कआउट्स जो लोग करते हैं, उनके बॉडी में अपने आप हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जितने भी हैं. ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने का ही 2 तरीके होते हैं. डू व्हाट यू लव टू डू,
Okay, anything that you love playing a guitar, happy hormones release होंगे. You love dancing to music, happy hormones release होंगे. आपको बहुत मेकअप करने का शौक है, happy hormones release होंगे. रिसर्च ने बताया है कि शॉपिंग करने से बहुत ज्यादा लड़कियों की बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है. रिसर्च बता रही है, मैंने कुछ नहीं बोला है. So when the girls go, just window shopping also releases happy hormones. It's not that they have to be standing at the billing counter. ओके, इट्स नॉट दैट. वो विंडो शॉपिंग, फिटिंग रूम्स में ट्राई करना, अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखना, मेकअप देखना, इससे उनके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. दैट मीन्स दे लव टू डू इट, दे लव शॉपिंग, है ना. सो इस तरह से एनीथिंग दैट यू लव दैट विल रिलीज. एंड सेकेंड वे टू रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इज वर्कआउट्स. वर्कआउट से बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी का सेरोटोनिन और एंडोर्फिन लेवल बहुत हाई रहता है. ये इनको फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं. तो इसलिए अगर फील गुड हार्मोन्स हैं तो स्ट्रेस तो बॉडी में रहेगा नहीं. फिर क्यों वरी और एंजाइटी और फियर और फ्रस्ट्रेशन होगा? नहीं होगा ना, बिकॉज आपका हैप्पी हार्मोन का लेवल ही इतना ज्यादा है कि वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को नहीं रिलीज होंगे. बॉडी में एक ही चीज रह सकती है, या तो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं. इसीलिए नेचर के हिसाब से, ठीक है, ये हो गई. बाकी सब बातें खाने की बातों में, ईट जो नेचर ने दिया है, ठीक है, जो धरती से उगा हुआ खाना है वो आप खाओ, ठीक है. अपने आप बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी. कभी कभी वंस इन अ वाइल खाते रहो, बिकॉज बॉडी में एवोल्यूशन हो रही है, बॉडी आपको अलाउ करेगी जंक फूड भी खाना, लेकिन कम कम रखो. व्हाइट शुगर को जितना एलिमिनेट कर सकते हो, अगेन वंस इन अ वाइल. कभी बर्थडे हो गया तो केक खा लिया, कभी कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो थोड़ा मीठा खा लिया, कभी कोई फेस्टिवल है और आपके घर में खीर या लड्डू या इंडियन ट्रेडिशनल डिशेस बनी है तो वो खा लिया. वंस इन अ वाइल इट इज ओके. ये रोज चाय, रस्क और बिस्किट खाना बंद कर दो, घर में बिस्किट लाना बंद कर दो. आप देखना 20-21 दिन के बाद आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है ना. नेचर ने नहीं बनाया है बिस्किट को, ठीक है, नेचर ने गेहूं बनाया है. आप गेहूं की रोटी खाइए, आप गेहूं का चीला खाइए, व्हीट फ्लावर का, ठीक है. नेचर ने मैदा नहीं बनाया है. मैदे से बनी हुई चीज कॉन्ट्रेरी टू नेचर है, ठीक है. सो कॉन्ट्रेरी टू नेचर है तो मिरेकल नहीं होंगे हमारी बॉडी में अगर हम ऐसा खाएंगे तो. नेचर ने शुगर नहीं बनाई है, नेचर ने गन्ना बनाया है, ठीक है. गन्ने से गुड़ बनाए, गुड़ बहुत क्लोज है गन्ने से, वो आप खा सकते हो. नेचर ने शुगर नहीं बनाई है. इतना सारा ब्लीचिंग पाउडर शुगर में डाल डाल के हमको खाया जाता है. बॉडी कितना मेटाबोलाइज करेगी बाबा. अगले बॉडी लिटरली क्राइज. सो कट दैट डाउन. यू विल एंजॉय. अच्छे से पानी पियो. 72% बॉडी वाटर होती है ना, पानी अच्छे से पियो. तो ये सब नेचर के साथ टैंडम में चलने वाली चीज है. मैं बार बार ये बताती हूँ बिकॉज इट इज नॉट जस्ट कि हम ये लार्जर देन लाइफ इमेज सोचे कि हमने ग्रेटिट्यूड कर लिया और उसके बाद मीठी सी कॉफी और चाय पी ली, ठीक है. विल नॉट वर्क ऑन अस. इट हैज टू बी, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी. वी डोंट वांट टू अब्यूज अवर बॉडी इन एनी वे, है ना. सो इस तरह से अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने साथ समय बिताओ, थोड़ा मेडिटेट करो, दिमाग शांत रहेगा. मेडिटेशन जब करते हैं तो आप अंदर की आवाज सुनते हैं अपनी, नहीं तो बाहर की नॉइज पूरी टाइम चलती रहेगी, है ना. मेडिटेशन में अंदर की आवाज आती है, इंट्यूशंस आते हैं, हंचेस आते हैं, ये पता लगता है कि मुझे ये करना है. मैंने क्यों वो रात वाला सेशन शुरू किया था ना, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए किया था. हंच आया था एकदम से, एक आवाज अंदर से बोलती है, एकदम मन में थॉट आता है, कभी कभी इमेजेस आती हैं, कभी कभी सामने नजर आता है, ठीक है. इस तरह से वो मेडिटेशन की वजह से ही तो आया था. मैंने पहले तो नहीं आप लोगों को बोला ना कभी, पहले नहीं. और इतनी बड़ी आर्मी है अब हमारी, मतलब वी आर एन आर्मी ऑफ सो मेनी पीपल. कल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे दैट वी वुड आल्सो लाइक टू वॉलंटियर अगर आप कोई 4th सेशन शुरू कर रहे हो तो. सो दैट वाज सो स्वीट, यू नो, लाइक इस तरह से दैट मीन्स हम सब इतने केपेबल हो गए हैं कि हमने अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को अप्लाई कर लिया है और हम इसको दूसरों के साथ आराम से अब शेयर कर पाएंगे कि देखो मेरी जिंदगी में इतना फर्क आया है तो आप भी इसको यूज करो. मैंने खा के देखा है, मैं अमृत, आप भी खाओ. इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, राइट. सो दिस इज व्हाट. सो इसमें रोंडा बर्न जो कहती हैं वी शुड फील हेल्दी, एनर्जाइज्ड ऑल द टाइम, ओके. और इसमें जो मेन चीज जो बताने वाली है दैट इसमें हमने 9 नंबर को यूज किया है अपनी हेल्थ को बदलने के लिए. 9 नंबर 3 times 3 होता है. हमको पता है कि प्लैनेट्स 9 होते हैं, दुर्गा माँ के 9 रूप होते हैं, है ना. तो 9 नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस होता है. जैसे नवरत्न होते हैं तो किसी भी बहुत अच्छी प्रेशियस चीज के साथ 9 नंबर अटैच्ड होता है बिकॉज 9 एंजेलिक नंबर कहलाता है. इट्स अ डिवाइन नंबर. तो आज हम 9 नंबर को यूज कर रहे हैं हेल्थ के एरिया को शिफ्ट करने के लिए, एनर्जी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर.
So it will be 352. Okay, it is not 532. It will be 3 for the past. पास्ट में ऐसे 3 मोमेंट्स आपको चूज करने हैं जिसमें आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करी है. हो सकता है आप किसी वेकेशन पे गए और खूब चले वहां पे, बड़ा मजा आया. हो सकता है आप वैष्णो देवी गए जिसमें आप चल के गए ऊपर तक, कितनी अच्छी हेल्थ होगी आपकी, आप सोच सकते हो, है ना. और मे बी आपके स्कूल में कोई एथलेटिक मीट थी जिसमें आप बहुत प्रैक्टिस किए एंड यू इवेंचुअली रन वेल, और व्हाटएवर बास्केटबॉल गेम था, यू परफॉर्म्ड वेरी वेल. हो सकता है वो हो सकता है कि कुछ एनुअल फंक्शन की तैयारी है जिसमें आपको बहुत ही आपका डिफिकल्ट सा वो कैरेक्टर था, उसकी प्रैक्टिसेस 1 महीने तक होती थी और रोज आपको जाना पड़ता था. तो उस तरह का, तो ऐसे पास्ट में 3 ऐसे मोमेंट्स आपको इमेजिन, ये लिखने की प्रैक्टिस नहीं है आज, अब से लिखना बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हम विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पे वर्क करेंगे. इसलिए 3 पास्ट से आपको चूज करना है कि कौन सी वो 3 मोमेंट्स थे जब आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करी, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया है. और खूब मैसिव ग्रेटिट्यूड फील करो उन तीनों मोमेंट्स के लिए कि वाओ द हेल्थ वाज सो गुड, आई वाज सो मच इन हाई एनर्जी, अमेजिंग, मजा आ गया. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, फीलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होनी चाहिए उन तीनों इवेंट्स को लेके जो आपके पास्ट में हुए, और थैंक यू बोलो उनको. पास्ट हो गया 3. प्रेजेंट में 5 बॉडी फंक्शंस जो आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं. अभी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है. सपोज यूरिन बहुत आराम से आपका निकलता है ना, फर्स्ट क्लास. यूरिनरी सिस्टम बहुत अच्छा है, आप उसको थैंक यू बोलो. आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप उसको थैंक यू बोलो, दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्टली स्ट्रॉन्ग हार्ट. फिर आपका सपोज और कोई फंक्शन है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा है, आपको हार्मोन्स बहुत अच्छे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा है, आप उनको थैंक यू बोलो. 5 बॉडी के जो फंक्शंस जो बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी, उनको आप मैसिव थैंक्स दो और खूब सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड, दिल में प्यार भर के ग्रैटिट्यूड दो. ठीक है, उससे फीलिंग अच्छी होती है. 5 प्रेजेंट के लिए हो गया. अब आप एक फ्यूचर का हेल्थ इशू को पिक करो जो आपको यू मोस्ट वांट टू चेंज, और उसके लिए आपको मन में तो सोचना ही है और विजुअलाइजेशन करना है. मन की आंखों से आपको अपने आप को उस पूर्ण रूप में देखना है जो आप something that you wanted to change in your life. It could be your body weight, it could be that you're sleeping like a baby and you're so waking up fresh in the morning. It could be your medical report that has come absolutely normal. It could be your thyroid, that you see that your thyroid, like, now is 3.5 TSH level, and you're really celebrating with joy that, oh wow, finally it has come. I'm so happy, that way. So minimum 1 minute के लिए आपको जो आप सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो हेल्थ में, उसको विजुअलाइज करना है. दैट इज फ्यूचर की. और ढेर सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड देना है, दैट वाओ आई रियली लव माय रिपोर्ट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, आई एम फीलिंग सो गुड. ठीक है, इतना उसमें इमोशन भरना है कि वो क्वांटम लेवल पे वो चीज आपकी इज ऑलरेडी अचीव्ड, है ना. बिकॉज जैसे ही हम फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं, पैरेलल यूनिवर्स में इट हैज ऑलरेडी कम ट्रू. बस उसको आपके आंखों के सामने बस आने की देर है. वो डिपेंड करेगा कि आप कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हो उसको विथ फीलिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, तो वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी. तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये ट्रिपल प्रोंग्ड अप्रोच इसको बोलते हैं, जो WHO ने एक टाइम ली थी जब उनको वर्ल्ड की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को FAO के साथ में जब था, तब. तो वही ट्रिपल प्रोंग्ड अप्रोच हम आज यूज करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, बहुत सुंदर हेल्थ क्रिएट करने के लिए. और वो एक चीज जो हमको वी रियली वांट टू चेंज इन आवर हेल्थ, उसके लिए, जैसे अगर किडनी आपको अच्छी करनी है, सो थैंक यू फॉर माय परफेक्ट एंड सुपर हेल्दी किडनीज. ओके, अगर आपको हार्ट करना है, थैंक यू फॉर माय हेल्दी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट. ओके, इस तरह से हमको करना है. फिर अगर आपको वेट बदलना है, यू वांट टू रीच योर आइडियल बॉडी वेट, देन यू हैव टू से थैंक यू फॉर माय परफेक्ट आइडियल बॉडी वेट एंड आई लुक सो गुड नाउ एंड आई फील सो हेल्दी, इस तरह से. और थैंक यू अटैच करना है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ. बहुत सारा मैसिव थैंक यू, मैसिव ग्रैटिट्यूड और खूब सारा प्यार. ठीक है, बस यही 2 चीजें जिंदगी में रह जानी चाहिए बाकी सब अपने आप ही सब रास्ते बन जाएंगे. तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस है बस. तो सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनको रीरीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आराम से करने वाली प्रैक्टिस है ये.
सुबह जल्दीबाजी में मत करना कि 6 बजे सेशन शुरू होने वाला है, मेरा हुआ नहीं, मैं और क्या लिखूं। अगर आपको जल्दीबाजी हो रही है तो जल्दीबाजी की फ्रीक्वेंसी बहुत खराब होती है पूरी दिन के लिए, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में आप सुबह स्टेप करोगे ना, पूरे दिन यू विल बी रश्ड अप। मुझे तो घबराहट हो जाती है अगर कोई कहता है मुझे करना है, मुझे वो करना है, बिकॉज मैं इतनी चिल्ड आउट पर्सन हूँ। घबराहट में मत करो, आप आराम से, कोई बात नहीं सुबह नहीं कर पाए, रोज का दिन अलग होता है ना, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई वो थोड़ी है, यू कांट बीट योरसेल्फ, एवरी डे इज यूनिक, एवरी डे इज डिफरेंट। आप आराम से कर लेना जब टाइम मिल जाएगा। आपको 6, 6:30 बजे 7, 7:30 बजे करना है, 8 बजे लिखना है, कोई बात नहीं। एक दिन अगर 8 बजे काउंट माय ब्लेसिंग्स करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये पावरफुल प्रैक्टिस है, उसको आराम से करो, है ना। और दूसरी चीज, रात को मैजिक रॉक है और दिन भर में हमारी ये वाली प्रैक्टिस है जो हमने बताई, 3, 5, 1 इज इक्वल टू 9, है ना। तो ये प्रैक्टिस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3, 5, 1। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। एंड इसके बाद आप देखना, रॉन्डा ने लिखा है अगर आपको हेल्थ इश्यूज थोड़ा ज्यादा बॉदर कर रहे हैं तो आप रोज भी कर सकते हो वाली प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट इट। बट अपना इसमें लिखा हुआ है ना, द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो वर्क्स हैंड इन हैंड विद गुड बॉडीली केयर। अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अच्छी चीजें खाओ, अच्छे विचार दिमाग में लाओ, ग्रैटिट्यूड में रहो, खूब पानी पियो, वर्कआउट्स करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, ये भी है, विद गुड बॉडीली केयर। न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिएंट, वो हमने एड्रेस कर ही दिया है। एंड एनी मेडिकल असिस्टेंस यू माइट हैव चोजन टू फॉलो, ठीक है। अगर आपको अभी लेना भी पड़ रहा है, सपोज शुगर अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए इंसुलिन लेनी पड़ रही है या ग्लाइकोमेंस लेने पड़ रहे हैं, तो आप आराम से उसको लो और इतना ग्रैटिट्यूड डाल के लो अपनी दवा में और उस पानी में जिसमें पी रहे हो, और हर बार थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ बोल बोल के उस पानी को सैचुरेट कर दो, उस दवा की जो गोली है उसमें इतना ग्रैटिट्यूड भर दो, थैंक यू फॉर गोइंग इनसाइड माय बॉडी एंड मेकिंग मी फील सो गुड एंड फॉर हीलिंग मी, ठीक है। अपने आप हील होगी। तो ये सारी चीजें साथ साथ जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, है ना, और अच्छी फीलिंग्स में रहेंगे। सो दैट इज इट। नाउ वी गो टू द अदर बुक विच इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जहां पे हम सेल्फ वर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। कल भी हमने सेल्फ वर्थ के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम अपने आप को ब्लॉक करते हैं अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। मेंटल ब्लॉक्स वी हैव समटाइम्स, and that is where we go wrong. We don't realize, sometimes we think we are not, अगर हमको कोई भी कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप बोलते हो अरे नहीं नहीं, ऐसा होता है ना, अरे नहीं नहीं नो, अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत प्यार से कॉम्प्लीमेंट लो बिकॉज यू डिजर्व इट, ओके। अगर कोई भी आपकी तारीफ करता है, कोई भी किसी भी चीज में कहता है, कोई भी कहता है वो यू मैजिकल, आई ऑलवेज से हाँ वो तो है, वो तो है। कोई भी कहता है कि वट एवर यू से यू नो वो सही हो जाता है और वो हो जाता है, ऑलवेज से हाँ वो तो है, वो है, वो योग है मेरे उसमें कि मैं कुछ बोलती हूँ तो वो सही हो जाता है। डेफिनेटली है, सीरियसली, इसलिए मैं बहुत ध्यान से बात करती हूँ, बहुत ध्यान से बोलती हूँ, यू नो, जब भी कुछ बोलना होता है। और फिर मैं अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी वॉइस को बहुत ब्लेसिंग के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोलती हूँ सच हो जाता है, आई नो दैट, ठीक है। सो एक्सेप्ट दैट कॉम्प्लीमेंट बिकॉज यू आर वर्दी टू रिसीव दैट, है ना। अगर कोई बोल रहा है आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, कहना थैंक यू सो मच। सो दैट वे, डोंट से अरे नहीं पहले जैसी तो है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। नो, बहुत कुछ किया है, तभी चेंज आता है जिंदगी में, बहुत कुछ। अगर कोई भी चीज सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज होती है ना, बहुत कुछ होता है जिंदगी में। आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ करी है, कुछ ना कुछ तो किया है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ओह इट इज गॉड्स गिफ्ट, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। अगर कोई बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस भी बोलती है कि अरे वाया यू, हाउ आर यू लुकिंग सो फिट एंड थिन, सो इफ दे से आई एम मेटाबॉलिकली ब्लेस्ड, नो, nobody is metabolically blessed, it's not like that. They take drugs, they take injections, they don't eat. जब उनको भूख लगती है तो वो सिगरेट स्मोक कर लेते हैं ताकि उनकी भूख मर जाए, बिकॉज सिगरेट आपकी भूख मारती है। तो बहुत कुछ करते हैं सब लोग, कोई मेटाबॉलिकली ब्लेस्ड नहीं होता। हम में से जो लोग भी हमारा फिट बिल्कुल है या वेट कम है, आप मुझसे पूछो why am I 52, 53 kgs? I work bloody hard on myself. You know, it is not that I would not say, oh, I'm blessed or ये तो ऐसा, ये no, not at all. I mean, like,
कई बार बहुत, अब आप देखो कि जो इंसान 8 साढ़े 8 बजे मुझे नींद आ रही थी, मेरा कल बहुत लॉन्ग डे था, बट इतना डिसिप्लिन था कि मैं इवनिंग सेशन लिया था मैंने बच्चों का, उसके बाद शाम को 8:15 के आसपास आई वेंट फॉर माय वर्कआउट्स, आई डिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग until 9:40 I was doing it, and then 9:45 50 finally I was in bed and I slept like a baby. Okay, so it is not easy. There's a lot of, like work involved. So working on yourself. Hard work सिर्फ अपने आप पे करना है. बाकी life is easy and effortless then. अपने ऊपर work करो. And this is what I don't let my thoughts and emotions go into any negative zone. I encourage people. Even at work, I try to give them opportunities. I try to make the environment very happy, even when I know that there is a lot of stress and a lot of work in our department sometimes. So मुझे पता होता है कि बहुत बहुत खुशी मुझे लेके आनी है. I can radiate that. So constantly there is a constant hard work that we all need to do. So accept that compliments, whenever you receive it. और इसमें कुछ affirmations थे यहाँ पे. इनमें से affirmations आप choose कर लेना. ये हमने कल पढ़े थे. एक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. I love the world and the world loves me. ठीक है, which is a very beautiful thing because सब कुछ world में ही encompass होता है. luxuries हो, abundance हो, business का अच्छा होना, travels होना आपके, सब कुछ उसी में आता है. I love the world and the world loves me, है ना. सो बहुत अच्छी ये चीज है. और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे. और फिर इसमें एक और था कि आपको अपने आप को चिट्ठी लिखनी है, अपने आप से बात करनी है, अपना नाम लेके. दैट वाओ दीप्ति, आई लव द डिसिप्लिन दैट यू हैव and you're so diligent with certain things you do and your priorities are so clear in life, you have such a perfect balance in your life, all those things. तो मैं दीप्ति को बोलूंगी, मतलब एज इफ वो मेरे सामने बैठी है. ये भी बताया हुआ था जैसे ना, सुजैन यू आर ब्रिलियंट एंड इंटरेस्टिंग पर्सन, आई लाइक यू वेरी मच. सो सुजैन वो खुद है लेकिन वो सुजैन को बोल रही है ना. ये भी एक वो दिया हुआ था कि इससे आपकी बहुत सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज में इंप्रूवमेंट आएगा. सो यस तन्वी, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे. दिस वे ऑफ टॉकिंग, मतलब अपना नाम लेके बात करना. हाँ जी. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. The way of talking directly to yourself is especially effective because much of a negative self-image comes from being convinced in various ways at an early stage by other people that we are bad, stupid, or inadequate in some way. Try to picture yourself as clearly as you can and think of giving love to yourself the same way you would do to anyone else you care for. You might think of it as the parent in you giving love and appreciation to the child in you. Tell yourself, I love you. You are a beautiful person. I appreciate your sensitivity and honesty. Creative visualization is a great way to work on any physical problems you may feel you have. For example, if you feel you are overweight, you can use two approaches simultaneously. One, through affirmations and loving energy, start learning to love and appreciate yourself as you already are. Second, through creative visualization and affirmations, start imagining yourself as you want to be, fit, healthy, and happy. These techniques can be extremely effective in making real changes. The same two techniques hold true for working on any aspect of yourself with which you are not satisfied. Yeah, Remember, 1 second, Tanvi. Let me just explain it in a little bit in Hindi. So, इसमें जो हमने कल देखा था कि सुजैन और उनका एग्जाम्पल था जॉन का, कि वो सुजैन ही अपने आप को बोल रही थी कि सुजैन यू आर सो ब्रिलियंट एंड इंटरेस्टिंग पर्सन. तो इसमें है कि अगर इस तरह हम डायरेक्टली अपना नाम लेके बात करेंगे, सेकेंड पर्सन में बात करेंगे,
तो इससे बहुत हमारी नेगेटिव सेल्फ इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो नेगेटिव इमेजेस हो सकता है कि बचपन से हमको किसी ने बोला है कि तुम्हारे बस की नहीं है, और मोटू मोटू कह कह के हमको मे बी टीज किया होगा, या फिर स्कूल में हमारी बहुत अच्छे रैंक्स नहीं आते होंगे क्लास में, हम मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, हम एवरेज स्टूडेंट होंगे, और हमने कभी वो टेस्ट नहीं लिया है कि कैसे होता है कि क्लास में फर्स्ट आना और वो सब। तो हमेशा से, या फिर इट जस्ट कुड बी that for the longest time the guy did not have any girlfriend or the girl did not have any boyfriend, सबके थे बट आपका नहीं बना, तो उन सब चीजों की वजह से ना हमारी थोड़ी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज कम हो जाती है, हमें लगता है कि हम इनएडिक्वेट हैं किसी तरीके से, है ना, इनएडिक्वेसी आ जाती है। तो ये सारी चीजें बचपन से आती हैं और हमको लगता है दैट हम किसी तरीके से कम है, मे बी नॉट बैड स्टूपिड बट हाँ इनएडिक्वेट इन सम वे, है ना। तो अब हमको क्या करना है, दैट वी नीड टू डू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और हमको बहुत सारा प्यार अपने आप को देना है और बहुत अप्रिशिएट करना है अपने आप को। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट आप अपने आप को बोलोगे, आई रियली लव यू दीप्ति, यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, आई अप्रिशिएट योर सेंसिटिविटी एंड ऑनेस्टी, या जो भी आपको बोलना है ना, that you're very beautiful, I love your discipline, I love your grit of helping others, I love that आप ऑफिस में इतने क्रिएटिव वो काम करते हो अलग अलग तरीके से, I really love you दीप्ति। पहले ये करना है ना। फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में करने के लिए हमको इसमें दो सिचुएशन, मतलब 2 स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। पहले तो जैसे आप हो, just the way you are, you have to accept yourself and love yourself. जब तक आप you don't make peace with who you are and where you are right now, तब तक आगे का रास्ता कभी भी नहीं खुलता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, हो सकता है अभी आपका बॉडी वेट 70s 80s 90s में है ना, तो आपको जो भी, इसमें ओवरवेट का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें स्टेप 1 होगा दैट अपनी एनर्जी चेंज करो एफर्मेशन के थ्रू, ठीक है, एनर्जी चेंज करो एंड से दैट आई रियली लव एंड अप्रिशिएट यू जस्ट द वे यू आर, ठीक है, आई रियली लव एंड अप्रिशिएट यू एंड लव योरसेल्फ। ये एफर्मेशन से करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्फ इमेज कम होती है तो जेन्युइन मतलब रियल फीलिंग्स नहीं आ पाती है, ठीक है। तो एफर्मेशन बोलोगे तो सबकॉन्शियस माइंड तो बिलीव करने लग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड तो बस जो हुक्म उस तरह से काम करता है ना। सो योर विश इज माई कमांड इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस। जैसे ही आपने कुछ बोला, it will give you the result, because it doesn't know right, wrong, true, false, this, that, nothing. So affirmation जब आप करोगे, आप फर्म करोगे उस एनर्जी को that आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो just the way you are. सेकेंड स्टेप होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से इमेजिन करो आपकी आइडियल स्टेट, फिट, हेल्दी एंड हैप्पी। ये तीनों चीजें, दैट आई एम फिट, हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है। ये इमेजिन करो कि आपका डिजायर्ड बॉडी वेट हो गया है और आप कितना फिट फील कर रहे हो, आप स्मॉल एस के कपड़े पहनते हो, हर जगह जा रहे हो तो आप काउंटर्स पे भी पूछ रहे हो, या जो भी स्टोर फ्लोर पे जो लोग होते हैं उनसे आप पूछ रहे हो दैट यू हैव साइज स्मॉल इन दिस, मीडियम इज टू लार्ज, टू बिग फॉर मी। तो इस तरह से आप वो इमेजिन कर रहे हो दैट यू हैव बिकम, एंड इमेजिन रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल that they are saying that you look so fit and look so good, all of that, ठीक है। So fit, healthy and happy, okay, ये आपको आइडियली क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में इमेजिन करना है। और इसमें लिखा हुआ है these techniques are extremely effective in making some रियल चेंजेस, और ये किसी भी एस्पेक्ट में आप कर सकते हो। अगर कुछ और है, आपको फाइनेंशियल, सपोज आपका बिजनेस उस लेवल तक नहीं चल रहा है जैसे आप चाहते थे, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। पहले अपने बिजनेस को, जितना भी पैसा आ रहा है अभी, जितना भी स्टाफ आपके यहाँ पे है, उनको एक्सेप्ट करो और उनके लिए बहुत सारा प्यार दो, और फिर उसके बाद विजुअलाइज करके आप क्रिएट करो कि आप देख रहे हो पूरा भरा पड़ा है, आप हर महीने सेलिब्रेट कर रहे हो, आपकी सेल्स ओवर, मतलब you're always like your targets are being shot up, and you're achieving your targets, you're such an overachiever, everybody is complimenting, you're celebrating with your staff, you're coming home and celebrating with your family, with your friends, you're all going out to celebrate such super success. So that super success word will get attached to your business turnover. So this is what. So हाँ जी तन्वी।
रिमेम्बर से करना है। Remember, you are a new person at every new moment. Every day is a new day, and each one is an opportunity to realize the wonderful, loving, and lovable person you truly are. In addition to improving your self image, it is valuable to repeat affirmations about opening up to and accepting the goodness of the universe. For example, I am open to receiving the blessing of this abundant universe. Everything good is coming to me easily and effortlessly. Any word you want to can be substituted for everything good, such as love, prosperity, creativity, a loving relationship. I accept my good, which is flowing to me here and now. I deserve the best, and the best is coming to me now. The more I receive, the more I have to give. Here is meditation. I You think can तन्वी हम do. इतना ही पढ़ेंगे. Meditation हम maybe tomorrow we'll have to take. वैसे भी कल वीकेंड होगा तो इजी होगा. ठीक है. थैंक यू सो मच तन्वी. Thank दिस इज अ you. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी हैव जस्ट रेड. इसमें ये है दैट ये एफर्मेशंस इन टू इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज आप कर सकते हो. बहुत ही सुंदर एफर्मेशंस है, माइंड ब्लोइंग. So these are, I'm open to receiving the blessings of this abundant universe. मतलब मैंने अपना ढक्कन खोल दिया है, उसमें डाल दो यूनिवर्स, उसमें blessings डाल दो अपनी. Then everything good is coming to me easily and effortlessly. और everything good में सब कुछ आता है. Health, prosperity, relationships, पैसा, इज्जत, शोहरत, opportunities, travels, luxuries, हर चीज आती है ना. So वो सब आपके लाइफ में बहुत easily आ रहा है, easily and effortlessly. I accept my good which is flowing to me here and now. ठीक है. पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ और सारी गुडनेस मेरी जिंदगी के अंदर आ रही है. That is what it means. Then I love this one. I deserve the best and the best is coming to me now. So that best incorporates everything. Again, this is an umbrella word. Then the more I receive, the more I have to give. So you have to give back also, isn't it? You have to raise people, you have to give opportunities, you have to contribute to the world, you have to help people और give किसी भी तरीके से. तन मन धन एंड अन्न, मैंने चारों ही बताए थे आपको. चारों ही रूप में आपको किसी को कुछ देना होता है. तन से दो, फिजिकली आप हेल्प करो किसी का काम करो. मन से करो मतलब ब्लेसिंग्स दो. धन से करो मतलब पैसे से दो. अन्न मीन्स फूड, है ना. Food and water or whatever, tea, coffee, whatever you have to give to your guards, to anybody who's there around you, anybody, like whatever in your own way, somebody underprivileged. So अब सेवा करने के बारे में सोचो that how can I contribute to make the other person's life better in your own way. It could be just by blessing. Blessings are very powerful. कहते हैं ना उसमें time space वो भी नहीं होता है, एकदम पहुंचती है blessing उनकी जिंदगी में. So that is who we need to become. These are beautiful affirmations. So the more I receive, the more I have to give. तो अपने आप यूनिवर्स विल गिव यू बिकॉज आप चैनल हो लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, है ना. और सबको एम्पावर करने के लिए. सबको एम्पावर, इतने सारे लोग एम्पावर्ड होते हैं, इतने सारे लोग, आप लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो अपनी जिंदगी में, खूब प्रोस्पेरिटी आ रही है, खूब अच्छा चल रहा है ना. while at the same time maintain balance in life, very very important. ठीक है. balance in food, balance in drinking, balance in sleeping, balance in traveling, balance in spending money. मतलब फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है ना. दिल बड़ा होना मतलब जो बहुत दिली तमन्ना थी उसके लिए खर्च करो. जैसे माइक्रोवेव नहीं है, खरीदा ही नहीं जा रहा क्योंकि कंजूसी है. किसी को गिफ्ट देना है, खूब सारे गिफ्ट दे दो, मजा आएगा आपको. ठीक है. अच्छे से दो, छप्पर फाड़ के, जब बहुत मजा आता है गिफ्ट देने में, तो अच्छे से गिफ्ट दो, दिल खोल के, है ना. सो इस तरह से. बट फिजूल खर्ची is something else. Okay, so that's something else. It's not that you have to just. So this is what we have studied today, and that's it. We can take anyone sharing. Anyone wants to share anything? Okay, so we have Sunaina's hand raised. Hanji, Sunaina. हाय दीप्ति. Hi. आज क्योंकि हेल्थ का चैप्टर है, ये मेरी हेल्थ की शेयरिंग है. लाइक मेरा 2019
2018 में गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, तो तब से मुझे वो एक सुबह एक ओमेप्राजोल लेना पड़ता था। वो डॉक्टर ने भी बोला था हाँ अभी लेना ही पड़ेगा। तो कई बार 2 भी हो जाते थे, कई बार 3 भी हो जाते थे, बट लास्ट 1 ईयर से लाइक धीरे 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 मतलब थोड़ा हो गया, लाइक मेरा कम हो गया, एंड नाउ इट इज लाइक मुझे याद ही नहीं मैंने लास्ट कब लिया था। तो इट्स मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, बिकॉज मुझे भी ऐसे लगने लग गया था कि ये कब तक उससे काफी और चीजों से भी असर आ रहा था, मेरा वो प्रोलैक्टिन बढ़ गया था ये वो, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता लगा कि वो कब मेरे सिस्टम से चला गया, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। ऑनेस्टली मैं बहुत कुछ और भी करती हूँ, मैं वैसे ही सुबह, आपको पता है, मैंने आपको बताया था मैं दुर्गा माँ का शुरू से मैं वो भी करती हूँ, बट ये चीज मेरी सिर्फ और सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एवरी डे, हर मोमेंट पानी को बोलना कि फॉर द माई परफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दवाई को इतना ब्लेस करके मैंने लिया इनिशियल के जो 6 मंथ जब मैंने जर्नी शुरू की। सो आज अब पड़े रहते हैं मेडिसिन के पत्ते, बट पड़े भी रहते हैं तो भी मैं इनको थैंक यू बोलती रहती हूँ कि मतलब तुमने मेरा इतना साथ निभाया। मैं उस तरह से ग्रेटफुल होती हूँ कि तुम्हें लेने से मैं खा पाती थी, एब्जॉर्ब कर पाती थी उस तरह से। सो दैट्स माय फर्स्ट हेल्थ विक्ट्री। सेकंड, मेरी 3 मंथ से इतना सिवियर बैकएक हो गया था कि मुझे फिजियो में किया था मैं इंडिया में ही। तो मैंने 5 सेशंस लिए थे, तो फिर उसके बाद मैंने उसको मना कर दिया था। तो उसने मुझसे पूछा था कि मैम कैसे, तो मैंने बोला तुझे 2-3 महीने बाद बताऊंगी डॉक्टर मोहित। तो मैंने यही सब प्रैक्टिसेस की कि मिराकुलस हीलिंग इज फ्लोइंग इनटू माय बॉडी। नहाते हुए हमेशा, पीते हुए पानी हमेशा, मैजिक इंग्रेडिएंट्स, वाटर एफर्मेशंस, थैंक यू जो हम बोलते हैं फार्मर्स को। मैं फार्मर्स को, उनकी फैमिलीज को, उनके किड्स को मैं ये 3 वर्ड्स बोलती हूँ कि सुख शांति समृद्धि, कि उनकी फैमिली जो ग्रो करती है, काटती है, प्रोटेक्ट करती है, हर वेदर में किस तरह से अपने वो क्रॉप्स को वो सर्व कर मतलब सेव करते हैं। एंड मैं अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी थैंक यू बोलती हूँ जिन पे वो खाना बनता है। और जो कई बार विनय मुझे हर वक्त टी कॉफी सर्व करते हैं, तो मैं विनय को भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो मेरे पास लेके बना के आते, मतलब पूरे इनिशियल बिगिनिंग फार्मर से लेके टिल एंड तक जो उस चीज को मेरे तक लेके आया। सो आई ब्लेस एवरीथिंग, इवन द यूटेंसिल्स आल्सो। सो दैट्स माय सेकंड शेयरिंग कि मेरी बैक अब बिल्कुल मिराक्युलसली हील्ड है, बिलीव मी। कोई फिजियो नहीं, मतलब थैंक यू टू दैट फिजियो गाय ऑल्सो, बहुत अच्छा उन्होंने मेरा फिजियो किया था। तो मैंने उस केबिन को, उनके सारे अप्लायंसेस को, इवन उनको भी बहुत ब्लेस करके आई। तो वो मेरी चीज, अब ये चीज वो काफी पेशेंट्स को बताते हैं कि सुनैना मैम का उन्होंने ऐसे ही ठीक, वो ऐसे बोलते हैं वो अपने जादू से सब ठीक करते हैं। तो मैंने उनको बोला नहीं, जादू मत बोला करो, उनको बोला करो कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से ये ठीक किया। तो दैट्स माय सेकंड हेल्थ विक्ट्री। या तो मैं आप काफी टाइम डिलीजेंटली से भी करते हो, डिलीजेंटली भी बहुत करते हो ना, सारी सिंसियरिटी, बहुत इतना अच्छा मेरा वर्क, इतना अच्छा मैजिक इंग्रेडिएंट्स, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। अब तो आपकी हेल्थ बहुत एवरी अच्छी है। एवरी मोमेंट, ऑनेस्टली एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। हाँ, सांस सा कहते एवरी हैं ना कि मोमेंट। उस लेवल तक पहुंचो जब सांस सांस में शुक्राना आ जाए, है ना? हाँ। तो इस लेवल तक आप पहुंच ही रहे हो, पहुंच ही गए हो। और मेरी 10 ब्लेसिंग्स में मैं एक चीज और शेयर करना चाह रही थी कि मैं मेरी क्या कर रहे हो चौथी राज? मेरी मेरी फोर्थ ब्लेसिंग जो थी हमेशा होती है कि थैंक यू टू माय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस गिवन बाय डॉक्टर रोंडा बर्न एंड टॉट बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा, प्रिया नेहरा एंड पूनम। तो ये मेरी फोर्थ ब्लेसिंग, मतलब दीप्ति तो शुरू से ही थी, पर जब से प्रिया और पूनम ने भी ज्वाइन किया है, ये फोर्थ ब्लेसिंग्स में मतलब मैं डे 1 से कर रही हूँ। अरे थैंक्स टू वाह। माय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। मैं ये पार्ट ऑफ माय ब्लेसिंग्स है, मेरी वो जो रोज काउंट माय ब्लेसिंग होती है, तो मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस को भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ। अमेजिंग। थैंक यू दैट्स फॉर शेयरिंग। या थैंक यू फॉर शेयरिंग। वही है, सांस सांस में शुक्राना। अपने आप ही, जब सांसों में ही शुक्राना जा रहा है, सांसों से ही तो जिंदा रह रहे हैं, है ना? सांसें गई मतलब सब सब चला गया।
तो हर सांस में शुक्राना होगा अपने आप। सब कुछ ऑक्सीडेशन होता है, खाने का भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन ही हील करता है, ऑक्सीजन ही सब करता है। सो इट इज अमेजिंग। देखो बिंदु रानी आपको बोल रही हैं, वाओ शेयरिंग। तुम सो जो बोल ठीक रहे है, थे चलो दीप्ति आई एंजॉय लव योर। यू, हाँ जी। आप जब बोल रहे थे दीप्ति आई लव यू, तो मैंने भी लिखा था दीप्ति आई लव यू। Oh, thank you. I love you too. I love everyone. Okay, Thank you bye so bye. much. Have a beautiful day. Delhi is on a shutdown mode today. So enjoy, write lots of blessings. अपने दिन को बहुत creatively use करना. And have a great day full of blessings, love, laughter, fun, joy, happiness, success. Bye bye. Thank you so much. Thank Deepti. you. Thank you, so ma'am. Thank you much. so much, ma'am.